السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ اچھے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آج ہم اپنا حسن اخلاق کا چیپٹر کریں گے. ذمہ داری، رسپانسبلٹی، المسئولیہ. ہم کہتے ہیں مسئولیہ. تو کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی ذمہ داری، یا ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، جہاں کے ساری ہمارے اوپر ہی ہیں، دوسروں کے اوپر کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. سورۃ صاد آیت 26. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر دینی اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. کیا؟ خواہش نفس. یوں ہی انسان نفس کو ماننے لگتا ہے نا. نفس کہتا ہے یہ کر لے، کھا لے، میں کھا لیتی ہوں. نفس کہتا ہے پی لے، میں پی لیتی ہوں. نفس کہتا ہے سو جا، میں سو جاتی ہوں. اگر نفس کی پیروی کرنے لگے، نفس کہتا ہے چلو بازار چلتے ہیں، ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، میں چل پڑتی ہوں. نفس کہتا ہے یہ چٹخاری دار ابھی کھانا میں نے کھانا ہے تو میں اسی وقت کھانا کھانے لگتی ہوں. یہ میرے نفس کی خواہش ہے کہ میں ہر وقت نفس کے پیچھے ہی پڑی رہوں، نفس کی خواہشات کو پوری کرتی رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہ خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. کیوں؟ کیونکہ جب انسان خواہش نفس کو پورا کرنے لگتا ہے تو کئی دفعہ نمازیں وغیرہ بھی چھوٹ جاتی ہیں، پھر اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، اللہ کی راہ سے بندہ دور چلا جاتا ہے. دیکھیں کبھی کوئی پروگرام دیکھنے لگے، ہم شروع کر دیتے ہیں کہ چلو نیوز دیکھ لیتے ہیں. نیوز میں پھر آگے آگے بڑھتے ایک بٹن دبایا تو وہ پھر آہستہ آہستہ انسان اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے، اللہ کی راہ سے پرے ہو جاتا ہے. وہی ٹائم ہم کسی اللہ کے کام میں لگا سکتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگا سکتے تھے جو وہاں پہ بیٹھتے تھے. تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام ہے. قال اللہ تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
والعاقبۃ للمتقین، سورۃ قصص آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑھائی نہیں چاہتے۔ کیا؟ جو زمین میں اپنی بڑھائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں خواہش نفس سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان اور اپنے گھر والوں کے درمیان اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کے لیے بھی یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنا دے۔ کئی دفعہ ہم اپنے نفس پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں، تو نفس کو بھی ہم نے ظلم سے بچانا ہے، آپ نے خود بھی نہیں کرنا اور دوسروں پر بھی کرنے سے بچانا ہے۔ ہمارا نفس ہی ہے جو آگے آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نا انا کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انا کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ انا جب آتی ہے نا، میں، انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا میں جب میں آتی ہے تو باقی سب بھول جاتی ہیں، کیونکہ میں اپنے لیے سوچ رہی ہوں۔ جب ہم دوسروں کا سوچنے لگیں گے نا تو میں کی پھر نہیں چلے گی، پھر ہم میں کی طرف اتنا نہیں توجہ دیں گے، پھر ہم دوسروں کی سوچیں گے زیادہ۔ دوسروں کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، کیا دوسروں کی سوچنا ہے؟ ان کی ضروریات پوری کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی، دوسروں کے بارے میں ان کی خفیہ باتیں جاننا، ان کے راز جاننا، ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے وہ لیتے رہنا، خبریں لیتے رہنا، وہ نہیں ہے دوسروں کے بارے میں جاننا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا گھر کس کو چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے خاص ہے، مخصوص کیا ہوا ہے جو زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہیں رکھتے اور نہ فساد کرتے، کیونکہ بڑا بنانے کے لیے ہی انسان فساد کرتا ہے۔ جب بھی انسان فساد کرتا ہے نا، زمین میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب دوسروں کے حقوق مارتا ہے، دوسروں کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، دوسروں کی بات نہیں سنتا، صرف اپنی ہی چلاتا ہے، اپنے حکموں کو ہی جاری رکھتا ہے، اور اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ دوسروں کے حقوق نہ ادا کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ بڑا بنا کے رکھنا چاہتا ہے، صرف یہی چاہتا ہے کہ میری سنی جائے اور میں ہی کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی بڑائی سے بچائے جو ہمیں تباہی کے گڑے پر لے جائے، اور انجام کی بھلائی کس کے لیے ہے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو ڈرتے ہیں اللہ سے، رہتے بچنے لگیں گے پڑھائی پر، پڑھائی تکبر نہیں کیا ہے کہ میں گھر میں بڑا ہے تو میری سنی جائے، کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں۔ اگر خاندان میں بڑی ہوں تو سب جاتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت آپ کو بڑھائی چاہیے، چاہے اپنی عمر میں بڑے ہونے کا، چاہے گھر میں بڑے ہونے کا، یا چاہے مال و دولت کی وجہ سے امیر ہو کے بڑے ہونے تک بتایا جائے مجھے آج انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہے اب ہم پڑھتے ہیں عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه قال اخبرني جدي ابو بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخادم الأمين الذي يؤدي ما أمر به خلق الناس أحد متصدق رواه البخاري۔ اور اس کا آپ لوگوں کے لیے پہلے ترجمہ ابی بردا
रज़ी अल्लाह अबी बुर्दा ने कहा कि मेरे दादा अबी बर्दा ने अपने वालिद सैयदना अबी, तो ये अबी बर्दा कौन है? पहले तो अबी बर्दा, फिर मेरे दादा अबी बर्दा। तो ये 2, 3, 4, क्योंकि आपको पता है कि अरबों में कैसे है कि बेटे का भी नाम अब्दुल्ला, बाप का भी नाम अब्दुल्ला, दादे का भी नाम अब्दुल्ला, तो ये चलता था उनके सेम नाम। तो वो यानी कि बाप दादों में भी जैसे अब्दुल्ला बिन अबई का बेटा अब्दुल्ला ही था, यानी कि उनका नाम भी अब्दुल्ला था। तो इस तरह तो अबी बर्दा जो है, इसने अपने दादा अबी बर्दा से, तो दादे के नाम पर नाम इनका, अपने बर्दा यानी दादा ने अबी बर्दा अपने वालिद सैयदना अबी मूसा अल अशरी, तो मूसा अशरी को हम जानते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से। तो ये अम, आगे भी यानी कि नस्लें तो मुसलमान थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या रवायत करते हैं, मुझे खबर दी, उन्होंने कहा कि मूसा अल अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से मुझे खबर दी है कि यानी उन्हीं के आगे चलती हुई बात आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानतदार खजांची वो है जब उसको कोई हुक्म दिया जाए तो वो उसे दिल की फराखी के साथ पूरा करे। तो वो भी 2 सदका करने वालों ही में से एक है। क्या? खजांची अपनी नहीं है, जो दे रहा है ना, जैसे किसी का नौकर हो, है ना? तो उसने नौकर क्या रखा हुआ है कि उसके फाइनेंस के जो है काम वो करेगा। जो फाइनेंस को हैंडल करेगा, किसको देना है, किसको लेना है, किससे लेना है जाके, तो ये कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीजें वो हैंडल करेगा। तो ऐसा खजांची, अमानतदार खजांची, क्योंकि अमानत बहुत जरूरी है ना, खासकर जो ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसको, जिसमें रुपए पैसे के मामलात के और ये सारी चीजों के काम हूँ, जो कि एक बहुत जल्दी बहकाने वाली बात है, क्योंकि माल हाथ में आता है तो क्या होता है, इंसान लालची हो जाता है और देना नहीं चाहता, खर्च नहीं करना चाहता। तो अमानतदार खजांची वो है कि जब उसको कोई हुक्म दिया जाए, जनाब हुक्म कौन देगा? जो मालिक है खजाने का। तो वो हुक्म दे तो वो उसे दिल की फराखी के साथ वो पूरा करे। फराखी क्या है दिल की? खुले दिल के साथ, घुटे हुए दिल के साथ नहीं कि हाय माल चले जाएगा, मेरे पास है, सामने है, मेरे पड़ा हुआ है, तसल्ली है मुझे, चला जाएगा। तो वो भी 2 सदका करने वालों में से ही, जनी के एक ने सदका किसने किया? जिसका माल था। उसने कहा इतना माल सदका दे दो, फलाँ मस्जिद में दे दो। अब खजांची जो है अमानतदार है अगर, तो वो जितना मालिक ने कहा है उतना माल खुशी-खुशी देता है कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा भी तो हिस्सा होगा ना। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सदका उसके मालिक ने किया है, जितना सदका उसके मालिक ने किया है, उतना ही सदके का अजर उसे भी दिया जाएगा, क्योंकि उसने उसके हाथों से गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान सोचे तो कोई बंदा किसी को भी चीज दिए हुए है और वो कहता है, जा कोई माँ ही है बच्चे को देती है, जाओ फलां को ये रकम दे आओ, जा खाना दे आओ, जा कुछ भी दे आओ, तो वो जो माँ सदका करने के लिए भेजती है बच्चे को, वो माँ को तो सदके का अजर मिलेगा, बाप को भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी कमाई थी, जिनके उसके शोहर को भी मिलेगा क्योंकि उसकी कमाई में से दे रही है, और क्या उस औरत के माँ-बाप को भी मिलेगा क्योंकि वो उनकी बेटी है,
यानी कि जे सदके में तो लड़ियां परोलें अपनी हारों की, कितने कितने लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। जो भी कोई अच्छा काम एक इंसान करता है तो कितने लोगों को उसका फायदा होता है। हम कहते हैं साल के बाद माँ का खत्म दिला दो, बाप का खत्म दिला दो, क्या कहते हैं, सालाना पता नहीं क्या कहते हैं, वो कर लो, तो हमारे माँ बाप को यानी साल तक माँ बाप इंतजार करे, साल तक वो हमारे गए हुए इंतज़ार करें और फिर हम साल के बाद उनका ख़त्म दिला के कह दें कि हमने उनको भेज दिया है। कुछ लोगों को बुलाएँ, रस्मी ख़त कुरान पढ़ाएँ और उनको ना वो पढ़ने वाले दुआ करें, क्योंकि पढ़ने वालों ने तो उसी वक़्त दुआ करनी होती है, जब कुरान ख़त्म होता है, तो कोई दुआ करेगा तो उन मुर्दे को तो दुआ चाहिए। इसीलिए तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है कि साल बाद कोई बैठवा के तो कुरान पढ़ाते थे। वो तो 40वें और 27वें और किसी का भी नहीं करते थे। कहीं सहाबियात, सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, ताबा, तबा ताबिईन, किसी के ज़माने में से ये साबित नहीं है। तो ये तो बाद की पैदावार है। दूसरी कौमों को देखा-देखी, क्योंकि वो करते हैं, हम ऐसी एक कौम में रहे हैं सदियों-सदियों, जे जाके उस कौम की पैदावार भी हैं, बाद में मुसलमान हुए, तो जो कि वो करते थे ऐसे काम। उनके मिलते-जुलते काम हमने लिए हुए हैं शादी और मर्ग में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए ऐसी खुराफात से, ऐसी रस्म और रिवाज से जो कि हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने डाल ली हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और बड़े धड़ल्ले से दीन को समझकर, दीन का नाम लेकर और नेकी समझकर हम कर रहे होते हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं, बड़ा अजर मिलेगा। तो जी हमें देखना चाहिए कि पीछे क्या है, इसका सोर्स क्या है। हमने हमेशा पीछे देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को खंगालना पड़ेगा कि कहाँ सोर्स है इसका मिलता। क्या अल्लाह के नबी ने किया? क्या किसी सहाबी को करने का हुक्म दिया? क्या अपने घर वालों को करने का हुक्म दिया? नहीं दिया, कहीं नहीं मिलता। तो जी फिर वो सदका करने वाला जब वो सदका करने का हुक्म देता है, तो दूसरों को भी अजर मिल जाता है और जितना कोई देता है, जैसे मैंने सदका किया मेरी माँ को, मेरे बाप को, उसका अजर उतना-उतना दिया जाएगा, चाहे वो कब्रों में हूँ, चाहे वो दुनिया में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी औलाद हूँ। औलाद जब नेक काम करती है, तो माँ-बाप के हिस्से में ऑटोमैटिकली वो उनका पार्ट चला जाता है, लेकिन औलाद के हिस्से से कमी नहीं की जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े गनी हैं, बड़े फ़राख़ दिल हैं अल्लाह। अल्लाह कमी नहीं करते, किसी के हिस्से में से काट के नहीं देते। ये नहीं है कि जो मैं सदका करूँ वो उसके हिस्से बना के अल्लाह ताला कुछ मुझे दे दे, कुछ मेरे माँ-बाप को दे दे, कुछ मेरे शौहर को दे दो, ऐसे नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते। अल्लाह बड़े फ़राख़ दिल हैं, अल्लाह बड़े जनरस हैं। अल्लाह उसका अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका हिस्सा कम किए बगैर, उसके हिस्से में से कमी किए बगैर अल्लाह ताला दूसरों को भी अता फरमाते हैं, उसके माँ-बाप को भी दे देते हैं। उसके जितने भी लवाहकीन होते हैं, जिन-जिन को उनके उसका सदका जारिया जैसे नाना-नानी है, नाना-नानी ने कोई ऐसा यानी अपनी उनकी बेटी थी आगे और बेटी ने अच्छे काम किए, अपनी औलाद को अच्छी परवरिश की, अब उनकी औलाद सदका दे रही है, तो क्या वो पीढ़ियों तक नहीं पहुँचेगा पहले? जी, फरज़ाना बहन आपका हाथ खड़ा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या बाजी कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। बाजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम एक ही सदक़े में बहुत सारी नियत कर सकते हैं, जैसे नाना-नानी की कर लें, दादा-दादी की कर लें, माँ-बाप की कर लें, अच्छा, ऐसे? ये जो है ना आप कह सकते हैं कि ए अल्लाह यानी नियत जो भी आप करने लगे हैं मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिल की गवाही काफ़ी है कि ए अल्लाह मैं ये सदका हम सब की तरफ से मेरे जितने ख़ानदान वाले हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं और जो ज़िंदा हैं, उन सब की तरफ से ये मैं
सदका कर रही हूँ। से मेरे बच्चों, मेरे बहन-भाइयों, मेरे शौहर के वालिदैन जो भी हैं, मैं सभी की तरफ से ये सदका कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब यही है कि नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम आप लेना चाहते हैं, अल्लाह मैं अपनी माँ और अपनी की तरफ से ही सदका करना चाहती हूँ, मैं अपनी और अपनी वालदा की तरफ से, तो नाम ले सकते हैं। आप यानी कि अल्लाह को तो नीयत का पता है कि आपने किसकी तरफ से किया है, आपको ज़ुबान से भी बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ुबान से भी कहते हैं, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि जो सदका दिया जाएगा अल्लाह के रास्ते में, वो अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं ना, आपको भी अजर मिलेगा और जितनों की तरफ से दिया जाएगा, अल्लाह अजर देते हैं, है ना? अब जो भी है अब दूर बात चली जाएगी कि अभी मैंने नाम लिया ना ये सालो सवाब का कि उनको पहुँचाते हैं, है ना? हम कहते हैं इतना कुरान पढ़ लिए और उनको पहुँच गया, तो क्या गारंटी है उनको पहुँच गया? कोई जब गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कोई गारंटी नहीं। हमने देखा उनको पहुँचता हुआ। नहीं वो अगर तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक, कहे के मुताबिक होगा, जैसे कोई सदका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए माज़रत चाहती हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद की वालदा फौत हो गई है। क्या मैं ऐसा काम करूँ जो मेरी वालदा को उसका फ़ायदा हो? यानी मैं उसके पीछे क्या भेजूँ जो उसको फ़ायदा हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुआँ खदवा दो, हुँ, कुआँ खदवा दो। तो उनको पूरे कुएँ का फ़ायदा पहुँचता रहेगा। ना पहुँचता है ना फिर इंसान को, जितने पानी पिएँगे, क्योंकि मदीने में उस वक़्त इसी चीज़ की ज़रूरत थी। पानी की उस वक़्त ज़रूरत थी, किल्लत थी। ठीक है? तो बहुत सारे कुएँ भी खुदवाए गए, नल आज भी लोग लगवाते हैं, पानी का सदका जारिया देते हैं ना। ये कहलाते हैं सदका जारिया, सदकातुल जारिया। जारिया क्या है? जारी रहने वाला। मैंने कोई मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में हिस्सा डाल दिया, चाहे 5 रुपए ही क्यों ना डाल दिए हों, 5 पाउंड ही क्यों ना डाल दिए। मेरा ये सदका जो है, सदकातुल जारिया की नीयत मैं करूँगी कि अल्लाह मैं अपनी तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से, ये जो भी मेरे वफ़ात पा चुके, जो मेरे ज़िंदा है, मैं ये सदकातुल जारिया दे रही हूँ, ऐ अल्लाह तू कबूल फरमा ले। न तो ये सदकातुल जारिया जो है, जितने उसके ख़ानदान वाले वफ़ात पा चुके हैं, उनकी तरफ से जारी हो जाएगा। ठीक है? और वो जारी तब तक रहेगा जब तक उस चीज से, या उस जगह से, या उस मस्जिद से, या उस मदरसे से, या कुछ भी हो, कोई दरख्त लगाया है उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। चरिंद परिंद जो भी उससे फायदा उठाएंगे, उनको उसका अजर सदका जारिया का मिलता रहेगा ता क़यामत, जब तक वो चीज बाकी रहेगी, जब तक लोग उससे फायदा उठाएंगे। कुरान दे दिया, कोई इस्लामी किताब दे दी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि किताब के पहले या आखिरी सफ़े पर लिखा होता है, ये मेरे वालिदैन की तरफ से सदका जारिया है। कभी आपने देखा हो किसी किताब के पीछे लिखा हो या कुछ? क्योंकि सुनिए किताब बहन, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि मतलब कि लिखा देखा है, क्योंकि कई जगह कई दफ़ा होता है ना कि कोई दुआएँ हैं, किसी ने छुपवा के साथ माँ-बाप का अच्छा, नाम लिख के। फौजी बहन को क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट, सॉरी बहन। फौजी बहन जॉइन नहीं कर पा रही है, 1 मिनट, क्या उन बेचारियों को लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुई थी? 1 मिनट मेरी बहन, 1 मिनट, मैं पहले इसको बंद करूँ थोड़ा, थोड़ी देर के लिए। इंशाअल्लाह ताला। तो हम कहाँ थे? सदकातुल जारिया के ऊपर, कि सदका जारिया जो है वो किस तरह सदका करने वाले के जनी में से कैसे सदका करना चाहिए और किस-किस तरह का सदका करना जायज़ है हमारी तरफ से। तो क्या वो ख़ास कर किसी के हुक्म पर सदका किया हुआ वो
सिर्फ ब्लैक रंग का, काले रंग का ही बकरा या काले रंग की मुर्गी और किसी की सिरी और पता नहीं क्या-क्या देते हैं, क्या वो काम आएगा? हुँ? नहीं बाकी ये नहीं काम आता जो अल्लाह क्योंकि क्या है अल्लाह ताला के वो तो लोगों को खुश करने के लिए कोई मतलब हासिल करने के लिए दिया गया है और वो भी खासकर जो ज्यादातर जो होते हैं ब्लैक मैजिक वाले जो गलत तरीके से लोगों को ऐसे बहकाते हैं वो ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी वजह है उसमें नहीं अब मैं जाती तो ऐसी चीजों से परहेज किया जाए और ऐसा माल लेने और देने से भी परहेज किया जाए। अल्लाह की राह में जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई दुःख आता है, फ़ौरन अपनी तरफ से सदकातुल जारिया ही कर दें, क्योंकि उसमें जारी रहने वाला अजर मिलता रहेगा। हम चले जाएँ दुनिया से, हम दुनिया में रहें, इस्तेमाल करने वालों को अजर मिलता रहेगा। किसी को आपने कपड़े दे दिए हैं किसी को आपने आपने पहने हुए ही कपड़े दे दिए हैं, लेकिन इतने गले सड़े कपड़े ना दें, जो खराब हों कपड़े वो ना दें। नाइस अपना नया जोड़ा बनवा लिया है, तो चलो पुराना जोड़ा जो था वो किसी को दे दिया कि चलो मैंने इसको पहन लिया है कुछ टाइम, तो वो भी पहन ले, किसी और के काम आ जाए। जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर बाकी रहेगा, जब तक वो दुपट्टा उसके जिस्म पर बाकी रहेगा सर पर, उसको अजर मिलता रहेगा। जिसकी तरफ से दिया गया है। तो अल्लाह ताला हमें क्योंकि किसी को कपड़ा पहना देना, किसी को खाना खिला देना, किसी के सर के ऊपर छत मुहैया कर देना, किसी के जो है बेगुनाह कैदी को रिहाई दिला देना, किसी के कोई ऐसा कर्जा है जिसमें वो जकड़ा हुआ है और लोग उसको इतने तंग कर रहे हैं, उसकी तरफ से उसका कर्जा अदा कर देना, जहाँ तक कि ज़कात देकर भी उसका कर्जा अदा किया जा सकता है, लेकिन वो कर्जे नहीं जो बैंकों के इतने चढ़ा रखे हों खामखा, जिनकी ज़रूरत नहीं थी और लोगों ने अपनी बढ़ाई के लिए उनको ले रखा हो। वो कर्ज़े जो इंसान गरीबी में आकर लोगों से लेता है और फिर अदा नहीं कर सकता, उन कर्ज़ों की मैं बात कर रही हूँ, जो जिनको इंसान को जिनकी वजह से इंसान को दूसरों के सामने क्या होता है तकलीफ होती है, जब वो उसको नीचा दिखाते हैं, जब उसको बातें बनाते हैं, बार-बार आके तंग करते हैं कि हमारा कर्ज़ा अदा करो, तो उसकी तरफ से कर्ज़ा अदा करना सदका की नीयत से भी कर सकते हैं अल्लाह ताला सदका जारिया क्यों? क्योंकि जब उसका कर्जा अदा किया जाएगा तो बाद में जो उसको रहाई होगी उस कर्जे से निजात मिलेगी और वो अच्छे नेक काम करेगा, दिल की खुशी से इबादत करेगा, यानी कि वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा, तो क्या हमें सदका जारिया का अजर नहीं मिलेगा? उसके नेक करने का, काम करने का, उसकी गर्दन छुड़वा दी कर्जे से। वैसे भी सदका दे सकते हैं कि उसको अल्लाह के रास्ते में वैसे भी दिया जा सकता है। हम तो सिर्फ़ ज़कात और सदका जब मुसीबत पड़ने लगी या पड़ी तो तब देने को ही सदका कहते हैं, जहाँ कोई मर गया तो तब। उसी को ही कहते हैं हम वैसे तो निकालने के लिए अपने खोलने के लिए तैयार ही नहीं। कहीं कोई भी काम हो रहा हो, अगर कोई किताब खरीदी जा रही है, कोई मदरसा चलाने में, कोई अब ज़ूम खरीदने में कुछ बहनों ने जी मेरा ज़ूम खरीदा हुआ है, तो क्या उनको सदका जारिया नहीं मिल रहा? मिल रहा है, उनको मिलता रहेगा। जितने लोग उससे फ़ायदा उठाएँगे, आगे भी पहुँचाएँगे, उनका हिस्सा उसमें डलता रहेगा। तो जी इस तरह इनको देखा जाता है कि सदका तो वो भी 2 सदका करने वालों ही में से एक है। यानी जिसका खजांची था, जिसकी दौलत थी, उसको उसको भी सदके का अजर और जिसने खर्च किया उसकी तरफ से, उसको भी सदके का अजर मिल गया। सुभान अल्लाह। और सदका एक ही नहीं मिलता, एक नेकी की 10, एक की 10, एक की 10 सोचिए कभी कोई कर रहा हो, कोई लगा रहा हो एक आवाज़, एक की 10 ले लो तो लोग दौड़ते हैं ना, 1 पाउंड दे के 10 चीज़ें खरीदने। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, एक की 10 तो मिलेंगी ही मिलेंगी, अगर नीयत साफ है तो, नीयत गलत है तो कुछ भी नहीं, खाना खाली।
नीयत साफ है तो एक ही 10 तो मिलेंगी। जितनी खालिस नीयत से किया होगा, जितना अल्लाह से प्यार करते हुए अल्लाह की चाहत में किया होगा, उतनी ही उसको अजर में इजाफा होता जाएगा। जहां तक कि अल्लाह ताला फरमाते हैं 700 गुना, 700 गुना तक भी एक नेकी का अजर मिल सकता है। और अल्लाह ताला चाहते हैं, अल्लाह चाहे तो उससे भी ज्यादा बढ़ा दे। कौन सा बैंक है दुनिया का जो 700 गुना कोई किसी को कोई फायदा देगा? कोई भी नहीं देता। कि एक आपने पाउंड दिया, 1 रुपया दिया और आपको 700 मिल गए या उससे भी ज्यादा, दिल की खुशी से उन्होंने दे दिया। कोई नहीं ऐसा करेगा। ये तो दुनिया के बैंकों में तो ऐसा लेना देना, और दुनिया को भी लेना देना ही, कि अगर कोई सूद पे कर्जा ले दे रहा है लोगों से भी, अस्तगफिरुल्लाह, आज तो लोग लोगों से भी लेने लगे। मैंने खुद पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया कि किसी का पता चला कि उसने सूद पे लोगों से, किसी कोई बंदे से पैसे लिए हुए हैं सूद के ऊपर अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, तो वो अदा नहीं कर पा रहा सूद के ऊपर। तो इसका मतलब जो यहूदी कारोबार था, यहूदियों का सूद का, वो जो छड़वाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने छड़वाया था मुसलमानों से, वो मुसलमानों में फिर आ गया। बैंकों के जरिए तो आया ही, वो तो यहूद ने खूब जाल बिछाया। जब उनको वैसे मना कर दिया गया, जब कारोबार उनके उधर बंद हुए, ठप हुए, तो उन्होंने बैंक खोल दिए। तो लेकिन ये है, बैंकों के अलावा लोग एक दूसरे से लेते देते रहे, तो वो बिल्कुल क्लियर आयात हैं कुरान की उसके बारे में। तो उसकी बजाय सदका दिया जाए। देखें चारों तरफ, जिसको जरूरत है, सफेद पोश भी होते हैं, खामोशी से उनकी मदद कर दी जाए। तो अपनी नीयत जो है खालिस कर ली जाए। आगे हम बढ़ते हैं 69 जो हदीस है 59 नंबर की। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राई अर्राइयति वल अमीरु राई वर रजुलु राई अला अहली बैतिही वल वम्राअतु वम्राअतु रायतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अर अर अर्रइयतिही रवाहुल बुखारी। क्या है? सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है। राई का क्या मतलब है? निगरान। वो जैसे कहते हैं ना कि चरवाहा अपनी बकरियों का राई है। चरवाहा क्या है? अपनी बकरियों का राई है। उससे उसकी बकरियों के बारे में सवाल होगा। तो हम अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक एक राय के मुताल्लिक बता दिया। कैसे? सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है और उससे उसके मतहतों से मुतल्लक सवाल होगा, यानी कि जो उसके अंडर थे, जो उसके नीचे लोग काम करते थे, जा उसके नीचे घर में रहते थे, यानी कि जिनका वो सरपरस्त था, जाके जिनका वो बॉस था, या जो भी है, उससे पूछा जाएगा, उसके मुतल्लिक सवाल उनके मुतल्लिक होगा कि उनके साथ सलूक कैसा किया, कैसे उनकी लुक आफ्टर की, कैसा उनको लगाया, यानी कि कैसे तरबियत कैसे की। अगर मर्द माँ है तो उसके लिए भी। पास अमीर निगरान है। और अमीर कौन है? अमीरुल मोमिनीन जैसे हम कहते हैं, वो अमीर जो के जिसके हाथ में मुल्क की बागडोर हो, या मुसलमानों की बागडोर हो, वो निगरान है। बस अमीर निगरान है और आदमी अपने घर वालों पर निगरान है। हर बंदा निगरान है।
हर मर्द जो है अपने घर वालों पर निगरान है और औरत अपने शोहर के घर और अपने बच्चों पर निगरान है। किस पर? घर, शोहर का घर और उसके बच्चे, अपने भी उसके और शोहर के भी, उन सब पर निगरान है। चाहे शोहर के पहले बच्चे हों जो उसकी सरपरस्ती में हों औरत के, जाके औरत के पिछले बच्चे हों जो उस औरत के ही सरपरस्ती में है, साथ लेके आई है, जा उन दोनों के अपने बच्चे हों, जो भी हों, औरत उन पर निगरान है और उससे सवाल होगा। क्यों? क्योंकि मर्द तो कमाई करने बाहर चला गया ना। अब उसके अपने पीछे छोड़े हुए भी बच्चे हैं, पिछली बीवी से भी हैं, तो वो भी औरत के ही सुपुर्द करके गया है ना, उसी की निगरानी में छोड़ के गया है। तो हम सोचें कि औरतें अपने बच्चों और सौतेले बच्चों में कितना फ़र्क करती हैं, तो क्या उनसे पूछा नहीं जाएगा? बड़ा ज़बरदस्त पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज़िम्मेदारी वो लेके शादी की। उस शौहर की बच्चों की ज़िम्मेदारी लेके शादी की, क्योंकि शौहर से शादी करना, बच्चों वाले शौहर से शादी करना क्या है? उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी लेगी। तो अब ज़िम्मेदारी नहीं निभाई तो गड़बड़ किधर है? औरत की तरफ से। औरत को कटहरे में अल्लाह ताला खड़े करेंगे। क्यों नहीं ज़िम्मेदारी निभाई? शौहर अपना घर सब छोड़ गया था पीछे। हमने कितनी गठलियाँ मारी, क्या किया वहाँ पे? कितना चोरी माल बेचा कि औरतों की कई औरतों की आदत होती है। शौहर घर पे नहीं है, जिसको देना लेना है, खासकर माँ-बाप के घर भेजना है या अपने किसी के, तो अभी भेज दो। शौहर घर पे नहीं है, शौहर गया हुआ है। तो क्या उसकी ख़यानत नहीं है जी? उसके माल की, उसकी कमाई की ख़यानत होगी? उसके एक-एक पाई जो है उससे पूछ के इस्तेमाल उसका किया जाए। हाँ, शौहर ने जितनी इजाज़त दी हुई है कि हाँ, बेगम आप, ज़ाहिर है कि उसे भी, शौहर को भी पता है, अब इसने बच्चों के लिए खाना तो लाना ही है, खाना तो पकाना ही है। अगर शौहर ला के देता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बाहर इधर-उधर तो ला के दे रहा है, तो रानी बन के रहे, घर में ऐश करे। शौहर ला के दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़िम्मेदारी वो लेने की ज़रूरत है जो अल्लाह ने नहीं डाली? तो जो अल्लाह ने डाली है उसका ख़्याल करे, उसके घर का की लुक आफ्टर करे, उसकी घर दीवारी अपनी, क्योंकि शौहर की जो इज़्ज़त होती है वो भी औरत के पास अमानत होती है उसकी, यानी कि उसके निकाह में है तो अपनी इज्जत का ख्याल रखे, खाम खाना यानी फहाशी ना फैलाती फिरे कि शौहर घर पे नहीं है, जो कुछ करना है, जो कि आशनाइयाँ करनी है छुपी हुई वो कर ले, नाउजुबिल्ला। तो वो क्या है? वो खयानत है, शौहर की खयानत होगी उसकी। तो इस खयानत से बचा जाए, क्योंकि हम औरतें हैं तो हम अपने ऊपर ज्यादा लेकर इस बात को करेंगे। जो भी हुक्मरान है किसी मुल्क का, किसी कबीले का, उससे जितने उसके अंडर लोग थे, सभी के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि क्या उनका उनका ख्याल रखा था सभी को। जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे किसी बकरी को भेड़िया कोई खा गया तो उमर से सवाल होगा क़यामत के दिन कि मैंने उस बकरी की हिफाजत क्यों नहीं की। दरियाए फरात बड़ी दूर था। हुँ? उसके किनारे भी क्यों? क्योंकि उस वक़्त मुसलमानों के अंडर वो इलाके आ चुके थे। इस वजह से कि दरियाए फरात के किनारे भी किसी बकरी को कोई भेड़िया खा जाता है, तो उमर से सवाल होगा कि उसकी हिफाजत क्यों नहीं की। तो आपको पता है जब वो एक जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई ना, तो भेड़िया जो है उसने बकरी को खा लिया था। भेड़िए ने बकरी को खा लिया था। तो वो जो उस इलाके के इतनी दूर के लोग थे, उनको पता चल गया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा चुके हैं, उस भेड़िए के बकरी को खाने से। उन्हें पता चल गया कि अब उमर नहीं रहे।
क्योंकि जो गडरिया था ना, जिसकी बकरी को खाया था, उसने कहा कि उमर उमर वफात पा गए, उमर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बकरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उसकी बकरियों को तहफ़्फ़ुज़ था। तो ये इस तरह हिफ़ाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला करवाते हैं अमीरों से भी। आज के अमीर क्या हैं? क्या आज के अमीर कितने जवाबदेह होंगे? कोई गवाही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, सब ही होगी। वहाँ पे तो शामत आएगी, सारी दुनिया पीछे पड़ेगी इनके, जो भी आज के हुक्मरान कर रहे हैं। खून निचोड़ रहे हैं लोगों का और अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला पूछेंगे, अल्लाह ताला सवाल करेंगे उनके बारे में। हम औरतें और औरत अपने शोहर के घर और अपने बच्चों पर निगरान है। एक जगह आता है कि उस जिस औरत ने अपनी अस्मत की हिफाजत की जब उसका शोहर घर पे नहीं था, गैर हाजिरी में अपनी अस्मत की हिफाजत की, क्योंकि उसकी इज्जत उसके शोहर की अब इज्जत है। वो इज्जत खराब करेगी अपनी, तो उसके शोहर को लोग कहेंगे फलां की बीवी ऐसी है, फलां की बीवी ऐसी है। तो नाम किसका जाया होगा? नाम किसका बदनाम होगा? शोहर का साथ में, जो उसने शोहर के नाम के साथ मुंसलिक है वो। और उसके बच्चों पर क्या सारी दिन उनको मोबाइल पकड़ा छड़े, उनको टीवी के आगे बैठा छोड़ा, क्या उनको महंगी से महंगी गेम्स लेकर दी और खूब ऐश करवाया? क्या उनको जरूरत थी? क्या आपने जितना महंगे से महंगा जोड़ा ले लिया और पीछे घर के खर्चे के लिए भी इस शोहर बेचारे को तंग कर दिया? जितने पैसे देकर गया था, जैसे अगर उसने शोहर ने, वैसे तो अक्लमंद शोहर जो है कि वो पैसा अपने पास रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, निदानों के हवाले ना कर दो अपनी मेहनत की कमाई के, आप हाथ मलते रह जाएं। तो अगर शोहरों को जिनको पता होता है ना कि हमारी बीवियां नादान हैं, वो पैसा नहीं संभाल के रखेंगी, तो वो अपने हाथ में रखते हैं, उनको कुछ देते हैं और अपने हाथ में बाकी पैसा रखते हैं, वो अक्लमंद शोहर है। क्योंकि बीवी जो है, अगर औरत घर को बनाना चाहे, वो किसी की है ना कि एक कहावत आपने बड़ों की कि घर को, अगर औरत जो है घर को अजाड़ सुई के नाके से भी घर को उजाड़ सकती है, और औरत अगर बनाना चाहे तो घर को सुई के नाके से भी बना सकती है। यानी इतनी छोटी छोटी चीजें भी वो जमा करके घर के लिए वो सोच सकती है, कर सकती है। इतनी छोटी छोटी तरबियत भी अपने बच्चों को देकर उनको बड़े बड़े आलम और फाजिल बना सकती है। थोड़ा-थोड़ा सा माल, हम माल बच्चों के दुनिया के लिए तो लगा लेते हैं, एक्सपेंसिव ब्रांड और सब कुछ खरीद के देते हैं, और अपने लिए भी। जब आती है दीन की बारी, तो मदरसे के में भेजने के लिए अगर वो 500 रुपया भी मांगे ना, तो हमारा गला जो होता है वो फटा जा रहा होता है बातें कर करके उनके लिए, कि इतने पैसे, इतने पैसे, इतना महंगा। अल्लाह का दीन भी इतना महंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीन हर वक्त मुफ्त ही हमें मिले, मुफ्त की ही मिलता रहे, क्योंकि मदरसे से मुफ्त की ही खीर आती रहे तो हम खाते रहें। मुफ्त हम दीन मुफ्त लेना चाहते हैं, और दुनिया, हम दुनिया के लिए जितना जोर लगा के डिग्रियां भी लेना चाहे दुनिया की, वो ले लेते हैं। जिन मदरसों में हम बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम बनवा रहे होते हैं, कभी उन मदरसों की जाके हालत देखें, टूटे-फूटे, टूटियाँ भी नहीं है बच्चों के पानी पीने के लिए, कोई पंखा भी नहीं है कि बच्चे वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के साँस ले लें, कुछ यानी कि अच्छा साँस ले लें, कुछ भी नहीं होता। और हम 500 रुपया देते भी मरते जाते होते हैं, जेब में हाथ डालते भी। या कोई किसी कारी को बेचारे को घर पे लगवाया हुआ है, हालाँकि वो नौकर नहीं है, वो दीन का इल्म जो है वो जो हम पढ़ चुके हैं ना उसकी, 2 लड़कों की कहानी, बादशाह के, अब मेरे ये नाम नहीं आ रहा, कि उसने जूतियाँ उन्होंने उठाई थी अपने उस्ताद की, तो बाप ने बुरा मनाया, तो जो यानी कि जूतियाँ भी उठा दे तो कोई इतना कौन देता है?
इल्म कौन देता है? उस्ताद। माँ भी इल्म का ज़रिया होती है, माँ-बाप दोनों ही होते हैं, उनके सुपुर्द भी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जब मदरसे में पहुँच जाता है बच्चा, तो उस्ताद की भी ज़िम्मेदारी होती है, उस्ताद भी इल्म देता है, वो बच्चे की परवरिश में शामिल होता है। आपको पता है उस्ताद को भी सदकातुल जारिया मिलता रहता है। ये जो पढ़ाना है ना किसी को, बड़ा अच्छा काम है, बड़े दर्जों वाला काम है। उसको जो मेहनत दुनिया में कर गया होता है या कर रहा होता है, जितने उस दीन पर अमल करेंगे, जितना वो पढ़ाएगा, वो सब उसके सदका जारिया लिखा जाता है। चाहे वो दुनिया का इल्म क्यों ना दे रहा हो, क्योंकि दुनिया का इल्म का लिखना पढ़ना दुनिया के स्कूल से ही सीख के अल्लाह ताला की कलाम पढ़ता है ना बंदा, दुनिया से सीख के ही फिर आगे बढ़ता है ना। जो कुरान की आयतें लिखता है, पढ़ता है, आगे पहुँचाता है, दीन का इल्म आगे पहुँचाता है, तो कैसे करता है? किताबें लिखता है। वही वो किसी उस्ताद से पढ़ा होता है ना, किसी स्कूल में गया था, अलिफ बा ता सा सीखा था, है ना? स्कूल की किताबें पढ़ी थी, पढ़ना लिखना सीखा था, तो इसलिए वो आगे बढ़ा है। तो वो जो आम स्कूलों के उस्ताद हैं, वो भी सदका जारिया पाते हैं। मेरी एक जे अल्लाह ताला मेरा जे अमल कबूल करे, और इसको मेरी एक उस्ताद है, उनकी औलाद नहीं थी, जो जो मेरी प्राइमरी स्कूल की उस्ताद थी और हमारी बिल्कुल गली में ही रहती थी। तो मैं उनके लिए मैं आज ये भी कहती होती हूँ कि ये सदका जो है मेरे उस्तादों की तरफ से भी है, मेरे जो मुसलमान उस्ताद, क्योंकि मेरे उस्तादों में बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी रहे हैं और मुसलमान भी रहे हैं। तो जो भी मेरे उस्ताद हैं, चाहे उनमें से वफ़ात पा चुके हैं या ज़िंदा हैं, उन सब की तरफ से सदका उनकी तरफ से भी सदका जारिया, जैसे मैं अपने घर वालों और उम्मते मुसलमा की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि ये सदका यानी अल्लाह में ये सदका जो है सदकातुल जारिया, जे में जितने मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अव्वलीन व आखिरीन जो वफात पा चुके हैं और जो जिंदा है, और जो मेरा खानदान जितना है, मेरे शोहर का खानदान, मेरे माँ बाप का खानदान, यानी जिसको आप शामिल करना चाहें कर लें, क्योंकि ये आप सदका दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ के जो जिस्मानी इबादत है, हम कहते हैं मैंने माँ की तरफ से 2 नफ़ल, मैंने बहुत लोगों से सुना, मैं अपनी माँ-बाप की तरफ से 2 नफ़ल पढ़ती हूँ, अपने फलाँ की तरफ से शौहर फ़ौत हो गया उसकी तरफ से पढ़ती हूँ, नाउज़ुबिल्लाह यानी कि फिर मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पढ़ती हूँ, मैं फलाँ-फलाँ के पढ़ती हूँ, 2-2 नफ़ल पढ़ती हूँ। जिस्मानी इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, किसी और बंदे के लिए नहीं है। जिस्मानी इबादत आप किसी की तरफ से नहीं कर सकते, किसी की तरफ से आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। हाँ, रोज़े के बारे में आता है, हज के बारे में आता है, यानी जिन इबादत के बारे में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया, उनको हम करेंगे। जिनसे मना कर दिया या जिनका कोई पाया ही नहीं जाता, सबूत ही नहीं पाया जाता, उनको हम नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने पूछा था कि मेरी यानी कि वालिदा फौत हो गई है, उसकी तरफ से मैं हज करूँ तो क्या उसको अजर मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, आप अपना कर लिया हुआ है। यानी पहले हज के लिए फिर ये है, शर्त के पहले अपना किया हो, तो फिर दूसरे की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अगर अपना फर्ज अपने सर पर हो तो फिर नहीं। हाँ, वो दूसरा आपको हज पर भेजने वाला जो है अपनी तरफ से, वो पहले आपको भेजे, अपने पैसे लगाकर, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको भेजे, फिर वो अपनी तरफ से आपको दूसरी बार भेजे, तो फिर इस तरह होता है। लेकिन ये जो जिस्मानी इबादत है, जिस्मानी इबादत आप किसी की तरफ से नहीं कर सकते। जो वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं, अगर उनके ज़िम्मे रोज़े हैं, ये एक बात से बात निकली है जिसकी वज़ह से मैंने सोचा कि क्लियर कर दूँ आप लोगों पर भी। शायद आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन चलो रिमाइंडर से ही।
क्या कि जब जैसे किसी की वालदा फौत हो गई, उसके ज़िम्मे उसके फ़र्ज़ रोज़े थे। यानी बीमारी की हालत थी, जब बुढ़ापा था, उसने रोज़े नहीं रखे हुए थे और फ़िदिया भी नहीं दिया हुआ था। तो क्या करें? उसके वारिस उसकी तरफ से रोज़ा रखेंगे। उसके फ़र्ज़ रोज़े वो पूरे करेंगे। उसके वारिस जो उसकी जायदाद बाँटते हैं, वो। तो जायदाद बाँटने वालों में कौन आता है? बेटे-बेटियाँ, बीवी या शौहर, है ना? तो अगर बेटे-बेटियाँ नहीं हैं, तो बहन-भाई जो उसकी विरासत के हकदार बनेंगे, क्योंकि औलाद नहीं है ना, तो बहन-भाइयों को जाएगा ना, माँ-बाप को जाएगा, बहन-भाइयों को जाएगा। उसके वारिस उसकी तरफ से रोज़ा रखेंगे, फ़र्ज़ रोज़े उसके पूरे कर देंगे। चाहे अगर वो बहुत सारे हों उनके ज़िम्मे, तो उनकी तरफ से वो अगर दे सकते हैं, यानी कि फ़िदिया दे सकते हैं, तो फ़िदिया दे दें उसके। उनको गिन के रोज़ों को जितने सालों के रहे हों, वो फ़िदिया दे दें। तो ये किया जा सकता है। जो करने के काम है वो करें, जो हमें करने का हुक्म नहीं मिला, उनकी तरफ अपना एनर्जी वेस्ट मत करें, माल वेस्ट मत करें, क्योंकि वो मिलेगा नहीं आगे से जाके। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें सही, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वारजुकना इत्तिबाआ व अरिना बातिला बातिलन वारजुकना जितिनाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, "ऐ अल्लाह हक को मेरी नजरों को हक ही दिखा दे, हमारी नजरों को हक ही दिखा दे, और उसको उस पर अमल करने की तौफीक दे, उसकी इत्तबा करने की तौफीक दे, और जो बातिल है, जो गलत है, उसको हमारी नज़रों को गलत ही दिखा।" क्योंकि नज़रें कई दफ़ा धोखा देख जाती हैं ना, धोखा दे जाती हैं। तो हमारी नज़रों को उसको गलत ही दिखा, और हमें उससे बचने की तौफ़ीक अता फरमा। तो ये हमें भी दुआ करनी चाहिए। नहीं आती अरबी में, तो ऐसे ही दुआ कर ले, अल्लाह हक को मेरी नज़रों को हक ही करके दिखाना। जो ठीक है, वो मेरी नज़रों को ठीक आ जाए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए, और मैं उसको फ़ौरन ही अमल उसके ऊपर शुरू कर दूँ। लेकिन जो बातिल है, मेरी नज़रों को अल्लाह ताला बातिल ही करके दिखाना, ताकि जो गलत है, वो गलत ही दिखाना। कई दफ़ा गलत जो है, शैतान या अपना नफ्स उस पर भी बहुत अच्छे पर्दे डाल के खूबसूरत बना के दिखाता है वो अमल। तो फिर हम कर गुज़रते हैं, तो पता चलता है ये तो गुनाह था, ये तो गलत था, ये तो बातिल अमल था। तो इस तरह हमें दुआ करनी चाहिए। तो ये हमारी रैयत जो है, अपने बच्चों पर निगरान जो है, औरत घर में, अगर उसके अंडर कोई और भी होगा, कोई और भी उसके अंदर है, उसकी निगरानी में है, तो उससे उसके बारे में भी सवाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को, उसने कोई यतीम बच्चा था, उसकी अपनी सरपरस्ती में ले लिया, चाहे शौहर घर पे ले आए, और उसने बीवी से पूछ के लेके आए, अब बीवी की निगरानी में है, तो उसके बारे में सवाल होगा, बच्चे के बारे में सवाल होगा, जो बच्चा यतीम ले आई थी, ताकि उसकी हिफाजत हो सके। अगर वो भूखा मर गया, अगर वो भूखा प्यासा रहा, अगर वो इल्म से नावाकिफ रहा, अगर उसकी तालीम और तरबियत में कमी हुई, खासकर दीन में, तो उस औरत से पूछा जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी में आया था वो। इंशाल्लाह हम छोटे-छोटे नौकर बच्चे ले आते हैं, उन बेचारों को फिर इतना तंग करते हैं। हम अपने बच्चों को इतने बेवकूफ़ और इतने बदमिज़ाज बना देते हैं कि उनको डाँट रहे होते हैं। इधर आओ और वो करो और ये करो, और अपने बच्चों को इतने प्यार से, बेटा इधर आए, ये करें, ये खा लो, और उसको इधर आओ, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर से वो भी बच्चे हैं, उनका भी दिल चाहता है। क्या आप उनको नहीं एक प्यार कर सकते? क्या जो खाना आपने अपने बच्चे को प्यार से दिया, उसको भी प्यार से, बच्चे बेटा आप भी बैठ के खा लें पहले, फिर काम कर लेना। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? आपके तो अजर में इज़ाफ़ा हो गया।
आपने तो एक अच्छा हुस्ने अखलाक का मामला करके उस बच्चे की सारी उम्र के लिए उस बच्चे को जीत लेती है वो औरत या वो मर्द जिसके घर में वो बच्चे होते। वो कहते हैं क्या वो पूरी नस्लें उन फिर घरों में पालती हैं। पूरी नस्लों के वो गुलाम अपनी गुलामी में ले लेते हैं। इतने अगर हुस्न सलूक के साथ उनके साथ मामला करते हैं तो। ये तो चलता रहेगा, ये तो हमारे मामले ऐसे हैं, ये ज़िम्मेदारी जो है ना, छोटी चीज़ नहीं है। अव्वल तो ज़िम्मेदारी ली ना जाए, जब ली जाए तो पूरा किया जाए। जहाँ पे हमारी हदीस नंबर 70 है, 70 नंबर की, तो क्या है? अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अब्दु इज़ा नसहा सय्यिदाहु व अहसना इबादता रब्बिही कान लहू अज्रुहु मर्रतैन। मर्रतैन होता है 2 मर्तबा। रवाहुल बुखारी भी है। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बाप और बेटा दोनों ही सहाबी हूँ, तो अन्हुमा कहते हैं फिर। से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलाम जो अपने मालिक की खैर ख्वाही करता रहे और अपने रब की इबादत भी तमाम हुस्न खूबी के साथ करे तो उसे दुगना सवाब मिलता है। दुगना सवाब का एक गुलाम भी दुगने सवाब का हकदार होता है, क्योंकि अपने अपने मालिक पैदा करने वाले की भी इबादत खूब अच्छी तरह करता है हुस्न खूबी के साथ, और जो मालिक है उसकी भी हर वक़्त खैर ख्वाही में लगा रहे। ये नहीं है कि मालिक नहीं है सामने तो खूब उड़ा दिया जाए उसका माल, या उसकी पीठ पीछे बुराइयाँ ही की जाए, उसके बारे में बुरा-भला कहा जाए। तो ये क्या है? ये फिर उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना होगी, तो उसके बारे में खैर ख्वाही करता रहे। उसके माल की, उसकी जान की, उसकी इज़्ज़त की, उसकी आबरू की, उसके घर की, हर तरह ही खैर-ख्वाही में रहे। लोगों को ना लुटाता रहे, चोरी ना करके बेचता रहे। बहुत कुछ होता है ना, हम इर्द-गिर्द ऐसे माशरे में हैं, घिरे हुए, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे। तो ये अब गुलाम तो नहीं है, लेकिन अगर जो कोई नौकर है, वो अपने मालिक की खैर-ख्वाही करता है, तो जैसे खजांची ऊपर हमने पढ़ा, बिल्कुल उसी खजांची में ही नौकर को और गुलाम को भी ले ले। तो अन अब्दुर्रहमान हमने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का सफर का वाकया सुना ही होगा। शहद किसी ने जो उनसे मांगा था, तो सुना होगा, वो पढ़ा होगा। लंबा वाकया है, लेकिन बहुत सबक आमोज है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं बताऊंगी। इंशाल्लाह ताला उसमें भी यही है कि उनके गुलाम को जो हुक्म हुआ था, वो उसने कैसे बजा लाया। वो कंजूसी कर रहा था, गुलाम जो था, डर रहा था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु सारा ही ना दे दें कुछ। हाँ? जब जब उसे हुक्म हुआ, वो ऐसा ही कर रहा था। और भी चीजों के लिए है, ऊंट के लिए भी आता है उसका। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो है वाकया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का। सफर एक के मौके पर कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर की हदीस है, 71, सॉरी सॉरी, ऊपर चली गई, जहाँ पे है अन अब्दुर्रहमान बिन समराता قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة ووكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وأنت عليها رواه مسلم।
आपको पता है मुझसे सहीहैन जो है ये सही मुस्लिम और सही बुखारी जो हदीसें जो ली हुई हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके इनके ऊपर अमल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस होती हैं। और मैंने पहले बताया हुआ है कि इस किताब में डॉक्टर फरहत हाशमी ने कोई वीक, कोई ज़ईफ हदीस नहीं डाली, हसन दर्जे की है या फिर बिल्कुल सही हदीस है। तो क्या है इसमें, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, तुम हुकूमत के किसी मनसिब का सवाल ना करना, यानी कि कोई बड़ा ओहदा ना मांगना हुकूमत का, इसलिए कि अगर ये मनसब तुझे सवाल करने से मिलेगा तो फिर ये तेरे सुपुर्द कर दिया जाएगा, यानी कि अगर तूने मांग लिया तो तुझे दे दिया जाएगा, और ये अगर तुझे बगैर सवाल किए मिल गया तो इस पर तेरी मदद होगी, यानी तेरी मदद की जाएगी। देने वाले, ओहदा देने वाले बिना मांगे ओहदा जब मिल जाता है ना, तो वो उस जिसको मिल रहा होता है उसकी मदद होती है। लेकिन अगर वो मांगता है, सवाल करके मांगता है, यानी मुझे ये ओहदा मिलना चाहिए, आजकल तो ज्यादा सवाल ही करके मांगते हैं, मैं इस मुझे ये ओहदे पर पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कितनी ही गर्दनें मार दी जाए, मैंने ये ओहदा लेना है ना? होता है ना, पाकिस्तान में तो बहुत ये होता है, आगे पहुंचने के लिए बहुत सारों की गर्दनें मारी जाती हैं जहाँ उनके हक मारे जाते हैं। एक किसी को नौकरी देने में भी कि एक बंदे के उसके पूरे नंबर थे, उसके पूरे वो पूरे हो रहे थे, जो भी कंडीशन थी, और क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे सकता था या दे सकती थी, क्योंकि वो सिफारिश नहीं ला सकती थी, तो उसको जॉब नहीं मिला। लेकिन जिसकी सिफारिश की गई, ना उसके पास वो कोई स्किल थी जैसी कि पहले काबिलियत वाले इंसान के पास थी, लेकिन उसको जॉब दे दी गई। तो उस हुकूमत का, उस घर का, उस खानदान का, या उस फैक्ट्री का, या उस कारोबार का क्या हाल होगा फिर? अनस्किल्ड वर्कर उसने रख लिया, सिफारिश की बिना पर अनस्किल्ड वर्कर रख लिया, और स्किल्ड वर्कर को उसने पीछे धकेल दिया, तो अपना नुकसान किया उसने। उसका भी हक मारा, उसका हक मारा, क्योंकि उसका वो हक था, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, जो उसके लायक होता है उसको देना चाहिए, जिसके लायक कोई जॉब नहीं होता उसको चाहे कितनी सिफारिशें आए नहीं देना चाहिए। सोच समझ के फैसले करे, अल्लाह के आगे जिम्मेदारी का सवाल होगा। अगर कोई नौकरियां देने की पोजीशन में है ना, या किसी महकमे में काम करते हैं, पाकिस्तान में तो सिफारिश और रिश्वत दो चीजें ही चलती हैं, तीसरी या धमकी चलती है, तीसरी धमकी है। तो ये चीजें जो हैं, अगर कोई हमारे अंडर है, हमें ये हक दिया गया है कि हम लोगों को नौकरियों पर रखें, जा हमारे शोहर, जा कोई घर, कोई ऐसे अदारे में काम करते हैं कि लोगों की सिफारिशें करवाते हैं, तो अच्छी सिफारिश करवाया करें। हकदार को उसका हक दिलवाने के लिए अच्छी सिफारिश करवाई जा सकती, की जा सकती है। लेकिन किसी का हक छीनने के लिए सिफारिश की जाए, ये कबूल नहीं है। इसके बारे में पकड़ भी है और सवाल भी होगा, क्योंकि दूसरे का हक मारकर किसी और को दे दिया। कोई मैट्रिक पास को किसी ऐसे ओहदे पर दे दिया जो कि दूसरे का हक था, जो कि डिग्री हासिल किए हुए था और उस जॉब को जानता भी था, उसको नहीं दिया गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हम भी बहुत सारे मनसबों का सवाल करते रहते हैं, हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। जब मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम कर नहीं पाते, तो वो फिर जाहिर है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर कहते हैं हम, क्या कहते हैं, खुद ही तो लिया था, खुद मांग रहे थे, अब पूरा नहीं कर पा रहे, करें हम पूरा।
है ना। तो जे अगर किसी ने दे दिया कि ये आप ओहदा संभालेंगे, आप आज से ये काम करेंगे, तो क्या है, उसने आपको इस काबिल समझा है कि आप ये काम कर सकते हैं, एबल हैं इस काम के, तो इसलिए उन्होंने दिया है। तो आप भी खुशी से करेंगे, अपने ऊपर बोझ भी नहीं समझेंगे, और फिर ये है कि वो देने वाला भी राहत महसूस करेगा अगर आप ठीक कर रहे हैं तो। आगे है हदीस जो ये अभी खत्म होने लगा है। ए, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी खत्म कर देती हूँ, लेकिन ये बस दो तीन अहादीस और हैं, मैं जल्दी इनको कवर करने की कोशिश करती हूँ। अनिन हसन अन्ना उबैदुल्लाह इब्ने उबैदिल्लाह इब्ने जियाद आदा मुकिला लबना यसारिम फी मरदिहिल्लज़ी माता फीह, यानी कि जिस मौत में वो मर गया, मर्द में वो मर गया। फ़क़ाल लहू माक़िलुन इन्नी मुहद्दिसुका हदीसा समीअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम समीअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यक़ूल मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रइयतन फलम यहुतहा बिनुसु बिनुसहिही इल्ला लम यजिद राइहतन राहिहतल जन्नह, रवाहुल बुखारी। सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबैदुल्लाह बिन जियाद मुक़ल बिन यसार रदी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए गए। कौन थे? अबैदुल्लाह बिन जियाद, जो गए किसके घर में? मुअक्कल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में इयादत के लिए गए, जिसमें उनका इंतकाल हुआ, यानी जिस बीमारी में उनका इंतकाल हुआ, उस वक्त वो उस बीमारी में इयादत के लिए, यानी कि दुनिया में वो पहले भी जब कहीं बीमार हो तो कोई इंसान जाता रहे इयादत के लिए, वो ठीक हो जाए, लेकिन जिस बीमारी में इंतकाल हो गया, सहाबा किराम एक एक चीज का ख्याल रखते हुए बताते थे कि क्या क्या उस वक्त हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताते थे। तो वो बता रहे हैं कि जिस बीमारी में उनका इंतकाल हो गया, उस में वो उसको इयादत के लिए गए थे। तो मुअक्कल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ, क्योंकि वो भी सहाबी रसूल थे ना, जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। हम होते तो क्या कहते? आप कभी आना जाना मेरे घर, बाद में भी मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बीवी के, तो क्या हम करते होते हैं? दुनिया की बात, वो अल्लाह के नबी की हदीसों की बात कर रहे थे, सहाबी थे ना, ऐसे ही मर्तबे उनको मिल गए। तो उन्होंने क्या कहा, जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदा को किसी राइयत का हाकिम बनाता है और वो उसकी खैर ख्वाही के साथ हिफाजत नहीं करता, तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी उसको। खुशबू क्या है? दूर दूर से कहते हैं, जन्नत की खुशबू दूर दूर से आ रही होगी, लेकिन जन्नत में जाना तो रही बात है, खुशबू भी नहीं उसकी पा सकेगा। कौन सा हाकिम है वो, जिसको किसी राइयत का हाकिम बना दिया जाए? हमारे कितने ओहदेदार होते हैं ना, हम कहते हैं ये क्या है, वो अपने इलाके का क्या मिनिस्टर है, वो अपना इलाके का फलां है, वोट लेकर भी आए हुए होते हैं। तो वो वोट लेकर जब आते हैं, तो वो ये अल्लाह से हल्फ उठा कर आते हैं, यानी कि लोगों से भी, कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, हम ये काम करेंगे, जो जो वादे किए होते हैं, अगर पूरे नहीं किए, उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभाते, अब ओहदा तो मिल गया, लेकिन जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभाते, तो क्या होगा? जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे ओहदों से भी बचाए
और ऐसे कामों से भी बचाए जिनमें जन्नत की खुशबू ना कोई पा सके। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात दे, आमीन। हदीस नंबर 73 73 अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खदमतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन वला लिमा सनअत वला अल्ला सनअत, रवाहुल बुखारी। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। यानी कि कैसे हम कहते हैं ना, उफ आपने फिर ये काम कर दिया गलत, उफ आपने फिर चाय गिरा दी। तो यानी कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटे बच्चे थे ना, माँ लेकर आई थी, आपको पता ही होगा इनकी स्टोरी का। छोटे बच्चे थे जब माँ लेके आई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कस्टडी में छोड़ गई थी कि आपके पास ये रहेगा, आपकी खिदमत करेगा। तो ए, वो गवाही दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हुस्ना की कि 10 साल मैंने खिदमत की, कभी भी मुझे उफ तक भी नहीं कहा। तो और ना कभी ये कहा कि फलां काम क्यों नहीं किया और फलां काम क्यों ना किया। यानी कि कभी सवाल जवाब भी नहीं किए कि किया क्यों नहीं है ना? कोई काम भी तो हम नौकरों के तो लिए इसकी तरफ, नौकरों को लाए, क्योंकि वो गुलाम नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में नहीं आए थे। अल्लाह के नबी के गुलाम तो हम सारे ही थे, सारे ही हैं। यानी कि उस वक़्त वो आज़ाद मुसलमान बच्चे थे और माँ ने तरबियत उनकी के लिए उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहेंगे तो दीन सीखेंगे, तरबियत पाएँगे, अच्छी तरबियत पाएँगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बहुत काम किया करते थे, लेकिन कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाराज़गी का इज़हार नहीं किया, उन्हें बुरा भला नहीं जाई गया। तो आज से हम क्या करेंगे? अपने नौकरों को कुछ देंगे छूट के नहीं? हुँ। किसके पास नौकर हैं वो उसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास नौकर नहीं है। हम हर काम खुद ही करते हैं। चाहे लोहार वाला हो, चाहे मोची वाला हो, चाहे सफाई वाला हो, हम खुद ही वो काम सारे करते हैं। ये भी आपको बातें मैं अभी बताती हूँ कि बाहर के लोगों मुल्कों में दौड़ने वाले जो है ना, उनके लिए एक यानी कि बहुत सारी उनको नसीहतें कि मत दौड़ें, अपना मुल्क छोड़कर, आगे से पक्की-पकाई खीर नहीं मिल रही, लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में हैं लोग। क्योंकि जहाँ के अपने हालात उनके ठीक नहीं है बाहर के मुल्कों के, तो इसलिए अपना सब कुछ बेच-बाच कर मत भेजें। अपने प्यारों को जब मत अपने बच्चों का सोचें कि जी बाहर ही जाके सेटल हो जाएँ, क्योंकि बाहर के हालात ठीक नहीं है, अपने मुल्क से भी बदतर है। तो इंशाअल्लाह ताला जी मैं आगे इंशाअल्लाह बढ़ती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इस्लाह इस तरह की थी। लोगों की इस्लाह इस तरह की थी, किस तरह कि कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। किसी जंग का जो मौका था ना जब वो रोम एम्पायर से जंग हुई थी, तो बहुत गर्मी के दिन थे ना, तो बहुत सारे लोग निकले नहीं थे जंग के लिए, तरह-तरह के बहाने बना रहे थे, आ रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी एक्सक्यूज़ करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल कर लेते, कुछ नहीं पूछते थे। कुछ नहीं पूछते थे, कोई सवाल नहीं करते थे, कोई सवाल जवाब नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें क्यों इजाज़त दिया आपने? तो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम मिजाज वाक़या हुए थे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप तुंदखू होते और सख्त मिजाज होते, जो कि हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, तो लोग यानी ये जो सहाबा इकराम थे, लोग जो आपसे छट जाते, वो पीछे हट जाते। तो नरम मिजाजी लोगों से काम लेना है तो नरम मिजाजी इख्तियार करनी पड़ेगी। आखिरी हदीस है 74 अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अता अहदकुम खादिमुहु बितआमी फ़इल्लम युजलिसहु माअहु विल फलयुनाविलहु लुक़मतन औ लुक़मतैनि औ उक़लतैनि फ़इन्नहु वलिय इलाजह से रवाहुल बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी गुलाम का खाना लाए जब किसी का गुलाम खाना लाए और वो उससे अपने साथ खिलाने के लिए ना बिठा सके, क्या? खाना लेकर कौन आया है? गुलाम। और मालिक जो है, इतनी उसकी यानी कि अगर उसको है कि हद तक आती है उसको गुलाम को साथ बिठाकर खाने में, अपने आप को नीचा फ़ील करेगा या कुछ, तो अगर वो अपने साथ ना बिठा सके, तो उसे 1 या 2 नवाले ज़रूर खिला दे। सुभान अल्लाह! खिला दे। खिलाएगा कैसे? अपने हाथ से ना। तो वो तो गुलाम थे। आपको पता है गुलाम की कोई अपनी कोई फ्रीडम नहीं होती। गुलाम जो होता है, जो मालिक कहेगा वही करेगा। गुलाम नो नहीं कह सकता कि मैं नहीं करना करना, मैंने नहीं करना। हालाँकि नौकर नो कह के नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन गुलाम के पास नो का चॉइस नहीं होता, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत होता है। वो उसकी प्रॉपर्टी होता है मालिक की। क्योंकि प्रॉपर्टी की तरह जो गुलाम वो भी प्रॉपर्टी की तरह आते जाते और बिकते थे। गुलामों को भी बाजारों में खरीदा और बेचा जाता था। इंसानों के बाजार लगते थे, आज भी है इंसानों के बाजार लगते। फिर वो बाकी जो गुल- आपने ये सदका को बताया था, सदका जारिया कहना चाहिए जैसे कि ईसा अलैहि सवाब, तो ये जो है ना, ये दिल में तो रख लिया, मान ली कभी भूल गया नहीं कह पाए, तो ये क्या सवाब मिलेगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अगर आप आपके दिल की नीयत यही है कि वे आप आमतौर पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई आमतौर पर सदका हर रोज करता है या कुछ हफ्ते बाद करता है या कुछ, तो वो सदका जो कर रहा है, अगर वो उसकी रूटीन बनी हुई है, उसने एक ही नियत की हुई है कि हर हफ्ते में देती हूँ ये या दूंगी ये जिधर भी दूंगी और किन किन की तरफ से दूंगी, या मैं सिर्फ अपनी तरफ से दूंगी, तो वो जाहिर है कि उसकी कंटिन्यूएशन, या फिर ये है कि अगर भूल जाए तो जाहिर है जब याद आ जाए तो फिर भी नियत कर सकता है कि अल्लाह ताला ये मेरा फलां की तरफ से था या मेरी अच्छा, तरफ तो से था। जो आपने ये बताया कि जैसे ईसा अलैहि सवाब होता है, अहले व अयाल होता है, तो ये सबको आ जाता है? इस सालों सवाब की मैं बात ये कर रही हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें साबित है ना, सिर्फ मैं उनकी बात बता रही हूँ। वो जो कुरान खानियां पढ़ पढ़ा के और जो इतना कब्रों पे बैठा के, मैं उनकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो उनकी कोई उसके बारे में कोई हदीस नहीं मिलती ऑथेंटिक। ठीक है, मैं अपने रस्म रिवाज लोगों के की नहीं बात कर रही, उनको तो मैं कंडम करती हूँ। क्योंकि जो हदीस से साबित नहीं, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित नहीं, अल्लाह की किताब से साबित नहीं, मेरी उस पे ना खुद का अमल है और ना मैं किसी को बताऊंगी, चाहे मुझे जो भी मर्जी कर ले कोई। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोड़ा है मेरे लिए काफी है। अल्लाह ने जो भेज दिया मेरे लिए काफी है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी दीन मुकम्मल करके दे गए। अल्लाह ने फरमाया अकमलतु लकुम दीनुकुम,
आज नहीं मैंने तो आपका दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। तो मैं उस इसालो सवाब की, अगर आप भी उसकी बात कर रहे हैं, जो इसालो सवाब यानी मैंने कहा कि अगर किसी के हम इसको इसालो सवाब इसलिए कहते हैं कि जो एक लफ्ज़ दिया हुआ है, तो अगर हम इसके से ही रिलेट करें सदके को, तो वो सदका ही होता है, उनकी तरफ से इसालो सवाब के लिए ही होता है, अगर हम उससे रिलेट करके करते हैं। नहीं बाजी, मेरा हुँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं दुआ मांग रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, तो कहते नहीं अहलो व आयाल कुल शहीद कुल मोमिन कुल मुस्लिमात, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी बुजुर्गाने दीन आए हों ता कयामत तक आने वाले हों, मैं पढ़ने में जी जो ऐसा जिस नहीं लंबा-लंबा कहती, मेरे मैं बहुत शॉर्ट, आपको पता है क्लासों के बाद भी मैं बहुत शॉर्ट दुआ माँगती होती हूँ। अल्लाह नहीं ताला अभी की कबूल कर बात ले। नहीं कर रहे हैं, इस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि हम मुझे पता चल गया, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि इतना एक-एक मुझे पता है लोग करते हैं वो सालो सवाब उन सब के लिए ये सब कुछ। आपकी मर्ज़ी है। आपका दिल चाहता है तो आप सबको ले आए बीच में, आपका दिल चाहता है तो आप कह सकते हैं। मैं कहती होती हूँ, अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात अव्वलीन व आखिरीन, जो भी ज़िंदा है और जो वफ़ात पा चुके हैं, और मेरे तमाम असातिज़ा किराम मुसलमान जो ज़िंदा हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, तो क्या वो मोमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात में वो नहीं आते? हुँ, जी, जी, आते हैं, आते हैं ना? भूल हाँ, बिल्कुल आते हैं। वो सारे आ गए ना? जी, और इसका कैसे पता चलता है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, दुआ मिलती है। खाली ये पढ़ लेने से, खाली यही पढ़ लेंगे, कुछ नहीं कह सकते, पढ़ के छोड़ दिया। मतलब ये जो दुआ है, मैंने क्या हाँ, मांगा, अरबी में यही तो मांगा कि अल्लाह ताला हमारी मगफरत फरमा दे, यानी जो बैठे हैं, जो हाजिर हैं, जो भी हैं, हमारी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना मैंने कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी कह सकते हैं, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे, और तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, अव्वलीन व आखिरीन, जो ज़िंदा हैं और जो वफ़ात पा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। मतलब लना में सब आ जाएँगे, ये मतलब है मेरा पूछने का आपसे। लाना में लाना में तो जो हमारे हाजिर हैं, सब जिंदा हैं, सब आ जाते हैं, और हाजिर भी आ जाते हैं। जो हाजिर का आपको समझ रहे हैं ना, जब अब हम इस क्लास में जितने हाजिर हैं वो सब हम इस क्लास में हैं, है ना? तो अगर मैं कहूंगी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, तो मैं आप सब के लिए भी कह रही हूँ अपने हाँ, साथ हाँ, साथ, ठीक है? ये पूछने का लेकिन मतलब था। साथ में, हाँ, साथ में ये है कि मैं कह रही हूँ अल अहयाई मिनहुम वल अमवात, उनमें से जो वफात पा चुके हैं और उनमें से जो जिंदा हैं, मुसलमान, यानी औरत और मर्द मुसलमान, और मोमिन मर्द और मुसलमान, जितने भी जिंदा हैं और जितने वफात पा चुके हैं, उन सब की तरफ से मैं, अव्वलीन व आखिरीन, सभी की तरफ से मैं ये भेज रही हूँ या दुआ कर रही हूँ ये उनके ये लिए। कहना ये कहना ज़रूरी बाजी कि भेज रही हूँ या जो कुछ भी नहीं भेज रही हूँ मैंने, वह तो वो वैसे मैंने नियत के लिए कि यानी कि हुँ, ये उन सब की तरफ से है बस, उन सब की तरफ से है। अगर आपने नियत अंदर की है, आपको ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं है, यही तो मैं पहले कह रही थी। अगर आप जी, भूल जी, गए जी, हैं, तो जब भी जी, आप अपनी नियत खालिस कर लें, जब भी आपको याद आए, आप फ़ौरन वो नियत कर दें कि अल्लाह ताला ये जो मैंने अभी दिया था, या मैंने पहले इतने जो जो भी मैंने किया है आज, जो मैंने किया था, वो सभी की तरफ से जी, जी, बस यही है ना? मतलब था मेरा पूछने का। है ना? अच्छा जी। कि ले हाँ, बस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतने लंबे-चौड़े काम करके नाम लेकर और फिर कहें, हाँ, यही तो मतलब है बाजी, टाइम नहीं रहता जैसे, थोड़ा ही सा कह दिया कि अल्लाह तू इसको कबूल फरमा। ये अल्लाह भी तो बस कबूल काफ़ी है। फरमा ले। हाँ, अल्लाह कबूल कर ले, हाँ, सब की तरफ से।
जी जी, यही बस है ना? मतलब था। सब कभी इंसान के पास वक्त नहीं होता, दुआ करता है, कहे भूल भी जाता है, तो कह दिया, दिल में रख लिया, वो भी मिल जाता है हाँ, सवाब, है ना ये बाजी? जो छोटी सी दुआ है ना, इसको याद कर ले। अल्लाह जी मगफिर ले, अल्लाह मगफिर ली, अल्लाह मगफिर लना, क्योंकि अपनी बेटी या बच्चों के तरफ से भी जो जिंदा है, अपनी तरफ से भी सब कर रहे हैं, अपने बहन भाई जिंदा जो है सब उनकी तरफ से करें, अल्लाह मगफिर लना। जहन में रख ले कि मैं अपने सारे खानदान, अपने सारे लवाहकीन की तरफ से कह रही हूँ, अल्लाह जी मगफिर लना, या अपने जितने भी हैं आस पास सभी की तरफ से, अल्लाह मगफिर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना लिल मुमिनीना वल मुमिनात बस। वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, क्योंकि मोमेन और मुस्लिम में फ़र्क है। अच्छा, आपको पता है ना, मोमेन और मुस्लिम में फ़र्क है। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम और अहलो व अयाल में फ़र्क है ना बाजी? इसालो सवाब और अहल व अयाल, ये मैं बात आपकी समझ नहीं पा रही। नहीं, जैसे कहते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम में सब लोग आ जाते हैं, अहलो अयाल में अपने अहलो अयाल आते हैं घर में, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इसालो सवाब मतलब यानी कि इसका अजर में भेज रही हूँ, उसका सवाब में भी इसकी तरफ से जो भेज रही हूँ, उसका मतलब ये होता है इसाल का। और सवाब जो है, वो भी अजर, वो इसालो सवाब हमारा एक ही है। अच्छा, लेकिन अहलो अयाल जो है वो हमारे घर वाले हैं। हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ कि ईसा सही है, ये पढ़ना सही है, ये कहना सही है ना बाजी? मैम ये ईसाल सवाब को ईसा कह इसालो रही हैं। सवाब कह रही, हाँ, जी, ईसा वो कह रहे हैं। इसलिए कंफ्यूजन हो रही ई है। सालो वो कह रहे हैं ना, ई सालो सवाब, तो वो इस जी तरह जी जी नहीं, कंफ्यूजन वो उनकी ये नहीं है, उनकी कंफ्यूजन ये है कि इस सालो सवाब और अहलो अयाल, क्योंकि हमारे वो उर्दू के बड़े बड़े वर्ड हमने सीख लिए हुए हैं ना, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। मत इस्तेमाल करें जी जी बड़े जी बड़े वर्ड जिनका समझ नहीं आती, ठीक है? अच्छा, मत इस्तेमाल करें, बस अपनी आसान जुबान में, जो भी जुबान आप जानते हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को, और जो जिंदा हैं और जो वफात पा चुके हैं, और हम सब को, हमारे सब घर वालों को, सब खानदान वालों को अब आसानी से भी कह सकते हैं, जी जी है जी, ना, अच्छी सभी बात को, है। है ना। ई सालो सवाब और अहलो अयाल जो है, अहलो अयाल हमारे अहल जो होते हैं, अहल होते हैं घर वाले, अहलुल बैत घर वाले, हाँ, और अहल सिर्फ जो अपनी है ना, फैमिली जैसे, हाँ, है ना। सो अहलो अयाल, अयाल जो होते हैं हमारे ये जिधर के में हम होते हैं, और जिनके हम यानी कि जो हमारे खानदान वाले होते हैं जिले, ठीक है। हाँ, अहल जो होते हैं, जो घर वाले उस वक्त होते हैं, जितने भी लोग घर में रहते हैं, और खानदान वाले भी उसी में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। अहलो अयाल में खानदान वाले सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है कहने की, ये एक अल्फाज है उर्दू में काफी मुश्किल से, अहलो अयाल, तो हम कहते हैं ना वो एक आल औलाद भी कहते होते हैं ना, आल औलाद, हम्म, आल औलाद भी कहते होते हैं ना, तो जी अहलो अयाल भी कहते हैं। और सालो सवाब हम उनको करते हैं, ये सालो सवाब करते हैं अहलो अयाल को, समझ आ गई? जी दो मुख्तलिफ चीजें हैं, अहलो अयाल को हम सालो सवाब करते हैं। जी, अगर मैं इस तरह की टर्म इस्तेमाल करूँ अलग-अलग आपको समझाने के लिए, तो शायद आपको समझ आ जाए। जब वो कहते होते हैं ना, तो यानी इसालो सवाब वो किनको कर रहे थे होते हैं, अहलो अयाल को, और जो भी आपने गिनवाया उन सब को, ठीक है? वो जो जी पढ़ा है, जा जो किया है उसको। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आखिरी आयत इसको खत्म करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह बाजी। ना तो क्योंकि उसे 1 या 2 नवाले ज़रूर खिला दे, क्योंकि उसी ने उसको तैयार करने की तकलीफ़ उठाई है। क्या? खाना है ना? मालिक को क्या हुक्म हो रहा है कि गुलाम को अगर अपने साथ बैठाकर खिलाने से हद तक महसूस होती है, नहीं बैठा सकता, आप उसे वो दर्जा नहीं दे सकता, तो क्या करे? उसे 1-2 नवाले खिला दे। क्यों? क्योंकि उसे भी पता चल जाए कि उसने खाना अच्छा बनाया है, उसके मालिक को भी पसंद आया है ना?
उसने भी बीच में, क्योंकि जब इंसान खुद चख ले तो मजा आता है ना, इतनी तकलीफ उठाई हो, बनाया हो, इतना टाइम लगाया हो और खुद चखे ही ना, दूसरों को ही दे दे तो क्या होता है फिर, है ना? खुद भी चखना फिर चाहिए ना। आप खुद नहीं चखना, अब हुक्म किसको हो रहा है? मालिक को, कि मालिक दे दे उसे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक दे। क्या हम नौकरों को इसमें लाते हैं? नौकरों को ले आए इसकी जगह, गुलाम की जगह नौकरों को ले आए? फौजी बहन क्या ख्याल है? हम्म, आपके घर में कोई नौकर है? कोई और फरजाना बहन आपके जी घर में मैम, नौकर जी है? जी जी। जी मैम, जी। तो बाजी मैम है। नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए, हम तो पहले फरजाना बहन यही आपके करते हैं घर में नौकर है? जी है, मासी भी है, नौकर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो मुझे कल मेरे हस्बैंड कहते थे, मासी क्यों कहते हैं आप? मुझे मुझे ये आप ही जवाब दे सकते हैं। मासी क्यों कहते हैं नौकरानी को? यहाँ पे एक रिवाज ही है कि औरतें जो आती हैं काम करने वाली हैं यानी कि उनको मासी तो, मैं उन्हें कह रही थी कि किसी ज़माने में, अब मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, किसी ज़माने में मासी तो खाला को कहते थे। तो जी जे जी अगर जी खाला मैम, हमारी इंडिया में नौकर आज भी होती थी, मैम इंडिया में आज भी खाला को ही कहते हैं मासी, लेकिन यहाँ पे यही ट्रेंड है पाकिस्तान में, तो लेकिन बाजी मेरी बेटी हम तो तो अब अपनी भी मासी को मासी कहते हैं। जी हम अपनी मासी को खाला या जी। मासी कहते होते हैं, अभी भी हम पंजाबी लोग कहते हैं हम भी मासी। अच्छा। बाजी हम भी मासी कहते हैं मासी मेरी मासी बेटी। और मामे। हाँ, लेकिन ये खाला के साथ मासी का जो चक्कर है ना, ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं किसने ये डाला हुआ है, अच्छी बात नहीं है। जी उनको बेचारों को मासी मासी कहते हैं, या तो अगर उनको खाला कहते हैं तो आप उनको खाला कहें, वो उसका अपना दर्जा दें, वो खाला कहें उनको मासी की बजाय। खाला आप मैम, ये काम आजकल हमारी जो मासियां हैं पाकिस्तान में, तो वो भी अब अपने आप को मासी नहीं कहलवाती हैं, वैसे तो वो कहती हैं हमारा नाम लें आप। तो अच्छी बात है तो ना। जो हमारे यहाँ आती है जी, जो हमारे यहाँ मासियां आती हैं तो हम लोग उनके नाम ही लेते हैं, मतलब वो जैसे ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो बड़ी होती हैं तो फिर मासी कह देते हैं, वरना जो लड़कियां होती हैं तो उनके नाम ही लिए जाते हैं। नाम हाँ लेना मैं चाहिए, नाम लेना चाहिए उनका। जी क्यों नहीं? क्योंकि वो मेहनत करके कमा के खा रही हैं, वो आपके गुलाम नहीं है, हमारे जी गुलाम नहीं है बिल्कुल। वो। वो जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं, बुरा सलूक करेंगे तो वो छोड़ के जा सकते हैं हमें। उनके पास चॉइस मौजूद है और उनके बारे में भी सवाल होगा। अगर वो मजबूरी, किसी मजबूरी के तहत हमारे अंडर हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत घरेलू मजबूरी है, पैसे की मजबूरी है, और हम उसकी मजबूरी से फायदा उठाएं और को उनको अंडर एस्टिमेट करके उनके काम का पूरा मुआवजा ना दें। उनके काम का मैंने ये देखा, 2-2 3-3 हज़ार रुपए पे, 5-5 हज़ार रुपए पे बेचारियाँ महीने के इतने वो काम कर रही होती हैं। तो वो भी फिर उन्होंने क्या करती हैं, वो फिर थोड़ा-थोड़ा, सभी ज़्यादा घरों में करती हैं ताकि उनका वो महीने का उतना पूरा हो जाए। तो उनके साथ बस ये है कि खाना उनको अपने साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गुलाम के लिए, गुलाम के लिए। और फिर क्या नौकर उससे ऊपर नहीं है, गुलाम से? बाजी वो तो खाने के टाइम से पहले ही निकल जाती हैं, कभी सुबह आती आपने हैं खा कभी आपने खाने का उनको दिया साथ में डाल जी के कि ये लो अपने मैम जी, बच्चों के लिए ले जाओ? हाँ, जी 7 जी बजे जी मैम, ये खाना तो डेली रूटीन है हम लोग का कि यहाँ हम लोग होती को, क्योंकि वो खुद इतनी जल्दी में होती हैं, वो खाना पसंद नहीं करती, ले जाना पसंद करती हैं, तो हाँ जी बस फिर क्योंकि साथ में ही पता, कर दो। उनका उनका जल्दी नहीं होती। मैं आपको ये राज भी एक बताऊं, जी शायद कि कुछ ऐसी भी हूँ क्योंकि उन्होंने अगले घर में भी जाना है। दूसरी बात ये भी है, गरीब जब चाहता है ना, जी मैम, यही यही बात है कि उनको मतलब अगले घर काम करने की जल्दी होती है ना, कि फिर वो ये सारे दिन होता है में ना जितने कि काम जाके उनको बाल करने बच्चों के होते हैं, साथ तो उसकी खाना वजह से। उसकी वजह से मैं दूसरी वजह भी बाल बताती बच्चों हूँ। के साथ एक और खाना वजह भी हो जी सकती है। वो क्या है जी कि जब आप उसको खाना देंगे ना, वो एक औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई थी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ही खजूर थी, उन्होंने एक खजूर उसे पकड़ा दी। उसके साथ 2 उसकी लड़कियां थी। उसने खजूर के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों लड़कियों को दे दिए और खुद भूखी रही। क्या मतलब पता चला आपको इससे? वो अपने, हो सकता है कि सारे उसे थोड़ा-थोड़ा दें, वो अपने जाके घर वालों को खिला ले।
जी, जी, यही समझ बात आई? जी है। मैम ऐसा ही है। जी, 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 ये पता है हमें कि अगर वो यही आप करते हैं। उसमें बल्कि अगर आपके पास आपको पता है ये खाना बच जाएगा और खराब हो जाएगा मेरा, तो उसे दे दें। उससे ये भी क्या है जाते हुए बाकी से काम कर रहे हैं ना और जाते हुए मेरी तरफ से जो बाकी खाना बचा हुआ ले जाना, बच्चे खा लेंगे। ठीक है? जी मैम, ये तो नॉर्मल रूटीन है, यहाँ पे सब लोग इसी इसी तरह तरह करते हैं इसी तरह ज़्यादातर ना। करते हैं। अल्लाह करे कि हम इसी तरह करते हूँ, फ्रिज में रख के खराब ना कर लेते हूँ। नहीं, नहीं मैम, हम हमारे जो मतलब मेरी जो फैमिलीज़ के लोग हैं, वो लोग तो इसी तरह करते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने में यही आया कि ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, कि जैसे अच्छी उनको बात है, एक्स्ट्रा अच्छी भी बात है। दे अगर देते हैं। अगर लोग ऐसा करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उनको इंसान समझे, वो तो मजबूर हैं। वो मजबूरी के तहत हमारे घरों में काम कर रही हैं कि अगर उनको कोई मजबूरी ना हो तो हम रानियां बनकर क्यों घरों में बैठे हैं, क्योंकि जी, हमें जी, अल्लाह ताला ने उस मजबूरी से आजाद किया अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें और उनकी मजबूरी का ख्याल रखें कि उनको इज्जत दी चलिए। जाए, उनको पूरी इज्जत दी जाए, पूरी इज्जत दी जाए। अगर आप क्लास ले रहे हैं ना कोई, तो उन्हें कहे 5 मिनट आप चलो कोई बात नहीं, ये काम मेरा जो है आप कल को कर लेना, फिर कर लेना। तो आप ऐसा करें कि जी मेरे साथ बैठ के सुन लें, तो क्या होगा? ये डॉक्टर फरहत हाशमी ने लॉन्ग टाइम अगो डॉक्टर फरहत हाशमी ने कहा था कि अपनी नुकरानियों को भी सुनाएं। हुँ, ये ही नहीं होगा कि वो काम करती रहें और उनको दीन की कोई बात ना पता चले। तो हमसे पूछ नहीं होगी हमसे कि मैं तो खुद दीन सीख रही थी, वो साथ में काम कर रही थी, तो मैंने उसे ये भी कह दिया कि ये दरवाज़ा बंद कर देना, आपकी तरफ आवाज़ ना आए, मेरी तरफ आवाज़ ना आए, यानी कि उसके दरवाज़े भी बंद कर दिए ताकि उसको कुछ सुनाई ना दे। अल्लाह के कलाम का कोई हिस्सा ना सुनाई दे, कुछ अच्छी बात सुनाई ना दे। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है? जी, इंशाअल्लाह। हाँ, जी ये मैम, बहुत इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी मैम हम बात लोग है। तो नमाज की भी तलकीन करते हैं अपने मासियों को ना, कि नमाज अच्छी बात है। पढ़ा करें। नमाज़ जी। अगर किसी नमाज़ का टाइम आपके घर में आ गया, जी मैं आपको बात बताऊँ, क्योंकि आपने कुरान सीखा है ना, आपने ये बात पता कर ली है, हो सकता है जिस घर में नेक्स्ट वो जाए उसमें उसको उसे नहीं पता हो खुद ही उस बात का, तो वो क्या कहेगी? नमाज़ का टाइम आपके घर में आ गया ना उसका, तो उसे कहें चलो कोई बात नहीं, आप पहले नमाज़ पढ़ जाएँ, उस अपने टाइम में से उसे टाइम दे दें, नमाज़ पढ़ जाएँ। क्या वो सदके में नहीं लिखी जाएगी आपके लिए, वो नमाज़ का अजर आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जो वो मैम। पढ़ गई, है ना? जी बिल्कुल। अपने टाइम में जी। से उसे दे दें कि 5 मिनट पहले ख़त्म करके तो अपनी नमाज़ पढ़ जाना, ठीक है? उसे अपने टाइम में से टाइम दे दें, तो वो खुशी से करेगी कि मुझे अपना टाइम दिया। अगर आप कहें कि ये सारा काम ख़त्म करके बाद में नमाज़ पढ़ जाना, तो क्या होगा? तो वो तो उसने तो आगे आगे घर घर जाना है ना, उसका तो आगे वाला टाइम उधर शुरू हो जाएगा, तो क्या वो नमाज़ पढ़ेगी फिर? क्योंकि आगे जी, जाते अगर वो उधर लेट गई तो डाँट पड़ेगी ना, भागने की पड़ेगी। हैं? उसको तो भागना होता है फिर दूसरे घर के लिए। भागना होता है, तो फिर अपने टाइम में से कभी ये सदका कर सकते हैं, ये भी टाइम का सदका होगा आपका। जी, अपने जी, टाइम का सदका करें, जी मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह टाइम का सदका करें, अपने अपना रुख बदलें जिंदगी का, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ये जरूरी नहीं है कि माल का ही सदका किया जाता है, अपने टाइम का भी सदका किया जाता है, अपनी सलाहियत का सदका किया जाता है, जो आपको आता है दूसरों को सिखा देना, ये भी सदका है और बल्कि सदकातुल जारिया है। कौन सा सदका है? किसी को काम कोई सिखा देना, सदकातुल जारिया। अच्छा काम सिखाना, किसी को म्यूजिक नहीं सिखा देना, इंस्ट्रूमेंट चलाने, वो सदकातुल जारिया नहीं, सदकातुल गुनाहिया होगा, ठीक है? साज बजाना नहीं, किसी को गलत नहीं सिखाना कि गलत ऐसे काम करते हैं। वो बिजली की चोरी कैसे करते हैं, इधर तार इधर से लगा लेना, हमने भी लगाई हुई है, तो ये क्या है? ये सदकातुल जारिया होगा कि गुनाह का सदका होगा? यानी कि गुनाह में अजर मिलेगा, ये गुनाह। गुनाह जी। में से इजाफा होगा कि सदक़े का मिलेगा? गुनाह में होगा। गुनाह में इजाफा होगा। जी। क्योंकि गलत काम दूसरों को भी सिखा देना क्या है? आप घपले कर रहे हैं, मैं घपला कर रही हूँ, मैं कहूँ कि आप भी ऐसे कर सकते हैं ज़रा, जी मैंने सीखा हुआ है, मैं तो ऐसे करती हूँ, आप भी ऐसा कर लिया करें। तो क्या होगा?
अब वो भी करने लगेंगे। हो सकता है वो भी आगे जाके बताएँ कि मेरी मालकिन ने मुझे कहा है, मैं ऐसा करती हूँ, आप भी करें और भी आप भी कर लिया करें ऐसा। तो कितने लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। आज आधे पाकिस्तान की बिजली चोरी ही होती है। क्यों? क्योंकि वायरें भी लगाई हुई हैं और कइयों की तो अमीरों को तो वो सब माफ़ है ना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं खर्च करा, इसीलिए तो वो अमीर हैं। गरीबों को सब टैक्स गरीबों पर है, क्योंकि वो इसीलिए तो वो गरीब हैं, क्योंकि उनका पेट भी नहीं भरता और कुछ भी और भी नहीं होता। तो इसलिए उनको अब ये गुलाम की जगह अपने नौकरों को ले आए। उसको ये भी कह सकते हैं बस प्यार से, बस बाकी सारा खाना ये आपके लिए मैंने बाँध दिया, बस 2 वाले मुझसे ले लो। क्या होगा? खुश होगी कि नहीं वो? सारा दिन वो खुशी में रहेगी कि मेरी मालकिन ने मुझे अपने हाथ से 2 वाले खिला दिए थे। इस हदीस पर अमल करेंगे आप? कौन कौन अमल करने के लिए तैयार है? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे जी अमल। मैम, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हम करें एक अपने घर में रखे हुए हैं, वो पीछे सिर्फ हमारी देखभाल कर रहे हैं। अगर उनकी मर्जी है वो झाड़ू लगाएं ना लगाएं, हम हर महीने के 150 पाउंड यहाँ से भेज रहे हैं। अब उसकी बेटी की शादी थी तो उसके दहेज वगैरह और खाना वगैरह जितने बंदे उन्होंने बुलाए, हमने यहाँ से वो तो पैसे देते मदद हैं। है ना, किसी की जी, मदद कर देना, चलो वो तो मदद है ना, नहीं लेकिन वो ये है कि हमने उनकी रखे हुए तनख्वाह हैं, वो ऐसे ही जो नहीं अच्छी बात चौकीदार। है, हाँ जी। क्योंकि ज़ाहिर है चौकीदार रखे हुए हैं, तो अपनी जायदाद के ऊपर क्यों नहीं? तो ज़ाहिर है अगर आप कर रहे हैं तो आप तो वहाँ पे जाएँ तो आप उनको खिला सकते हैं, हाँ, खाना जो अपना बनाए। वहाँ तो वो नमाज हमारे साथ पढ़ती है और खाना भी देते हैं और सब कुछ है ना? जी, सब तो कुछ। ये सारा लाए अगर कोई गैर मुस्लिम भी है ना आपके घर में, मैं अब पाकिस्तान वाली बहनों को, क्योंकि मैं कि अपनी फैमिली के घर में गई तो उनके वैसे हमने ना वो ईसाई मिस्त्री औरत थी। लगाए ना तो वो ईसाई ईसाई थे, तो हाँ, सब ने ना मुंह फेर लिया कि इनको काम पर क्यों लगाया हुआ है, इनको खाना क्यों दे रहे हैं। वो तो ईसाई थे ना। गलत बात है, गलत बात जी, है, क्योंकि तो वो उन्होंने जो भी हमने वो जो जो ये बंदे रखे हुए हैं ना, ये भी नाराज हो गए कि आपने ईसाइयों को क्यों लगाया हुआ है मिस्त्री, वो क्यों काम कर रहे हैं यहाँ कुछ पर। नहीं, उनका हाथ गंदा नहीं है, इधर जाके इन मुल्कों में हम ईसाइयों का बना सब कुछ खाते हैं, तो क्यों खाते हैं हम? उन्हीं की पैक की हुई चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, उन्हीं की कुक की हुई चीज़ें मार्केट से खरीदते तो हैं, भी फिर कहते हैं इनको कलमा पढ़ें, ये कि ये इनको क्यों ये लगाया हुआ है, ये ज़बरदस्ती क्या दीन तो है, नहीं दे ऐसे है। सकते किसी को, हाँ, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उनकी मर्ज़ी होगी, हाँ, उनको उनके ब प्यार अपने हुस्न अखलाक से पेश आएँगे उनके साथ, तो उनको पता होगा कि ये मज़हब बहुत अच्छा है। इस हाँ, मज़हब वो के जो मानने हमारा वाले ऐसे। नौकर था वो भी उनका मजाक उड़ाए, वो चलो कैसे करे, पर इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे सुब्हाना मियाँ तआला ने हम ना, सबको अमल की तौफ़ीक हाँ, अता फ़रमाए, क्योंकि उसको मना किया कि ऐसे ना करो, वो भी इंसान है। अगर हम इस्लाम फैलाएं तो हमारी हाँ, अगर उनको इस्लाम हमारे उनको अच्छे नफ़रत भी अखलाक दे की वजह से हाँ, वो कलमा पढ़े, ये नहीं कि वो हमारे मजाक हम उनका उड़ाएं तो वो ऐसे, वो तो फिर भागेंगे हमसे। भागेंगे कि मुसलमान ऐसे हाँ, होते हैं मुसलमान इनका ऐसे होते मज़हब हैं। ऐसा है, इन्हें सिखाता कि ये दूसरे के मज़हबों का मज़ाक उड़ाएँ और उन्हें ज़बरदस्ती खींच-खींच कर अपने मज़हब की तरफ लाएँ। मुसलमानों को हुक्म नहीं है जी। अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूति फयुमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सूरत बकरा आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत पढ़ लें जाके, पता चल जाएगा। बल्कि वो पूरी आयत पढ़े रुकू तक। अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। दीन को आपको पेश करना है। पेश कैसे करना है? प्यार मोहब्बत से। पेश कैसे करना है? दीन सही जो दीन है वो आगे देना है। जो मैं कर रही हूँ अमल, अगर मैं गलत कर रही हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उस हिस्से को छुपा लूँ दीन के को, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ उसके ऊपर अमल, वो कहेंगे आप तो कर नहीं रही तो मुझे दे रही है। दीन पूरे का पूरा बताया जाएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे इंसान बनने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे-प्यारे
हुस्ना के ऊपर, अस्वाए हुस्ना के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये किताब हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसके ऊपर अमल करने लगे ना एक एक चीज पर भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अखलाक दुरुस्त करने में बहुत हामिल किताब है। ये तरबियती क्लास है। ये जो हुस्न अखलाक की बुक है ना, हमें तरबियती क्लास में पढ़ाई गई थी। कुरान खत्म करने के बाद जब हमने क्लास की थी ना आगे पहुंचाने के लिए, तरबियती क्लास है, उसमें पढ़ाई गई थी हमें। और कुरान की भी वो आयत जो इसमें दी गई हैं वो तरबियत के लिए ही है, हमें कि ये काम करने चाहिए और जिनसे ये नहीं करने चाहिए। ये हमारी तरबियत करती है, खासकर जो वो बहनें जो दीन आगे दे रही हैं, उनको बहुत जरूरत है ऐसी तरबियत की कि हम कैसे लोगों के साथ पेश आए। हमारे साथ काम करने वाले हमारे को वर्कर हैं, कोई हमारे साथ कोई हमारी हेल्प करने आई हुई है, तो उनको दे देना, थोड़ा-सा उनको खिला देना, उनके लिए रख लेना कि जी मैंने आपके लिए रख लिया था, आप भी खा लें। तो ये दिलों की खुशी जो है, दिलों को जीत लें। दिलों को जीतना रोज़े नमाज और ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि हुस्न अखलाक जो है, उसका दर्जा बहुत ऊपर चला जाएगा। और ये नहीं है कि आप रोज़े नमाज़ें छोड़ दें, हुस्न अखलाक की तरफ ही जाएँ। मतलब ये कि कई दफ़ा रोज़ा नमाज़ करने वाला इंसान जो है, वो दर्जे में नीचा चला जाता है, अपने बुरे अखलाक की वजह से। घर वालों के साथ हो, या बाहर वालों के साथ हो, या नौकरों के साथ हो, बुरे अखलाक की वजह से अपने दर्जात गिरा देता है, अपने रोज़े नमाज का सवाब भी ख़त्म कर देता है। और हुस्न अखलाक वाला इंसान अगर उसके पास बहुत नेकियां भी नहीं है ना, सिर्फ फराइज ही हैं, नेकियां बहुत नहीं है, लेकिन इतना इतना अच्छा सलूक करते हैं लोगों से, तो लोग उनके गर्विदा होते हैं। अल्लाह खुश होता है कि मेरे बंदों के ये काम आ रहे हैं, मेरे बंदों को तकलीफ नहीं पहुंचाया रहे। पीछे हमने पढ़ा ना कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, दूसरे इंसान महफूज रहे। मैंने कहा था वो हदीस याद करनी है। मुसलमान वो है जिसके यानी अच्छा मुसलमान है ना, वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहें, दूसरों को तकलीफ ना होती हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا ولإخواننا الذين المجاهدين في سبيل الله والفقراء والمساكين في أرض فلسطين وفي كل مكان آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आमीन जज़ाकल्लाह सुम्मा खैर आमीन फिर वइय्याक दुनिया वाला आखिरा अल्लाह जज़ाए खैर आमीन दे आपको आमीन आमीन